विश्व ऐतिह्य सूर्य मंदिर को मंगलवार सन्धार G20 संस्कृति विभाग प्रतिनिधि दल बुली देखिथिले। 20टी देशर 37 जन G20 प्रतिनिधि माने पुलिस कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य एठारे पहुंचवा परे IOCL निकटरे जिला प्रशासन ASI और पर्यटन विभाग पक्षर ओडिशा परंपरा अनुसार विपुल स्वागत संबर्धना दि जाइथिला। वैदेशिक व्यापार और संस्कृति राष्ट्रमंत्री मीनाक्षी लेखी एही गस्तरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे प्रतिनिधि मानक मंदिर भितर को पाछोटी नहीं। ASI और पर्यटन विभाग पक्षर स्वीकृति प्राप्त गाइड माने मंदिर इतिहास और सूक्ष्म कारुकार्य उपरे विस्तृत भाव बुझाई। सूर्य मंदिर सूक्ष्म कारुकार्य देखि विदेशी प्रतिनिधि माने अभिभूत हो पड़ते। सूर्य मंदिर परिसर में गौटीप नृत्य परिवेशन होता जहाँ प्रतिनिधि मानक मनोरंजन जोगाइथिला। परे परे शब्द और आलोक माध्यम कोणार्क मंदिर इतिहास गाथा देखिपारी। यह कार्यक्रम में SI पुरी सर्कल सुपरिटेडेंट दिव्यस्मिता ब्रजसुंदर गणनायक, अतिरिक्त SP पुनःचंद्र प्रधान, ASI सुपरिटेडेंट इंजीनियर चितरंजन दास, जिला पर्यटन अधिकारी सरोजकांत प्रधान, कोणार्क पर्यटन अधिकारी अमीय कुमार सेठी, कोणार्क IIC रंजन कुमार मल्लिक और विभिन्न विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमुख उपस्थित थे। Leticia. And from which country? From Brazil. Have you enjoyed this visit to Odisha, and now you're visiting Sun Temple, world famous Sun Temple, World Heritage Site Sun Temple. How are you enjoying this visit, and how you think that the cultural exchange between India and other country it will develop on your visit? Oh, I'm enjoying very much. I think the temple is extremely beautiful. It's something very different from anything I have ever seen, especially because of the fact that it's built like a chariot and it's dedicated to the sun god. So I think it's something very particular to India. But on your question about the relations of countries, I think it's very important that us from other countries have the opportunity to come and see this, and this is also a very good incentive for us to strengthen our cultural cooperation within the G20 working group, as it gives us a living example of the value of this kind of places can have in our lives. Thank you. Thank you. I will ask you a question. Okay. Your name, please. My name is Ananto Seta. I'm delegate from the Indonesia. Indonesia. Yeah, we have a lot of relationship between Indonesia and India, especially Odisha. We have what we call the festival called Kalinga Bali Yatra. It is the what you call the connections between Kalinga. Business relation between Indonesia and Odisha. And Odisha. It's many years ago. So we proposed that this kind of what you call relationship will be proposed to the UNESCO next time. Yeah. Now you're remembering the past relation between Odisha and Indonesia. Yeah, I think this is not only people to people, but also the cultures, the traditions, the values, the share. And the Kalinga in Indonesia and Kalinga in Bali are also connections on the spice route. It's part of the spice route between Indonesia and India. After this visit, what do you want to give message to the world for the peace? This is the heritage. This is a lot of values from our ancestors, that human being should be in one, no matter the colors, the religions, the race. We are one. Our ancestors already prove and teach us how to connect the people around the world. Thank you very much. मैम एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हम होस्ट कर रहे हैं, इंडिया होस्ट कर रहा है G20 का, अभी कल्चर के ऊपर अभी एक्सचेंज हो रहा है। क्या इन फ्यूचर पर्यटन के क्षेत्र में यह कितना बढ़ावा देगा, ये जो समिट और बढ़ा देगा? विशेष आज जो सन टेम्पल विजिट हुआ है, G20 का जो रिप्रेजेंटेटिव विजिट किए हैं, और पूरा प्रोग्राम क्या है, और ये फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए क्या फ़ायदा लाएगा? देखिए, भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की, और इस अध्यक्षता को भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है कि हम भारत की विशेषताओं से पूरी देश दुनिया को अवगत कराएं। तो सबको अवगत कराने का विषय है, और जो
हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों का जीवन शैली थी, वो भी हम सबको बताएं, क्योंकि उसके बारे में भी लोगों को पूर्ण विचार नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय खुद भी पहले इन सब चीज़ों से अपने शुद्धिकरण, अंतःकरण का शुद्धिकरण करके अपने विचारों को सुदृढ़ करें और एक विचार को लेकर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करके खुद सीखें और फिर दुनिया को उस विचार को आगे लेकर जाएं। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत के लिए अमृत काल के रूप में काम होंगे, उसमें भारत अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, बशर्ते हम सब लोग सही काम करें और अपने इतिहास से गौरवान्वित होकर अपने पूर्वजों के द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर आने वाली सीढ़ी को पकड़ें। और आने वाली सीढ़ी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं हो। और देश दुनिया को भी जब हम बात करते हैं, आज की तारीख में लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और सृष्टि दोनों के सम्मेलन से हमारी भारतीय संस्कृति का उत्पन्न किया और उस भारतीय संस्कृति को जब उत्पन्न किया वो हमारे एक एक पत्थर और एक एक कण कण में दिखाई देती है। उस कण कण को अगर भारतीय परंपराएं खुद अपने आप को जीवित नहीं रखेंगी तो देश दुनिया को क्या बताएंगी। तो समय है कि भारतीय अपनी परंपराओं से सीखकर अपनी परंपराओं के विचार सुदृढ़ कर उसको अपने कर्तव्य के रूप में, कार्य के रूप में आगे लेकर बढ़े। तब आने वाले जो 25 वर्ष है भारत के लिए अमृत काल का शुभ संदेश लेकर आएंगे। खुद आप समझा रहे थे, आप देख रहे थे कि समझा रहे थे G20 के जो मेंबर्स है लोग आए और यहाँ की इतना बड़ा टेम्पल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट, ईस्टर्न इंडिया का एक ही वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, क्या उनको समझाए और क्या उनका फीडबैक लिया आपने? मैं उनको ये बता रही थी कि हमारे यहाँ पर धर्म और विज्ञान का अंतर नहीं था और हमारे जो धार्मिक स्थल थे वो शिक्षा दीक्षा का भी स्थान होते थे। जैसे कि वो नाट्य मंडप है, तो उस नाट्य मंडप में हम नृत्य के माध्यम से अपने जो विचार हैं वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करते थे। और संगीत, मैं नाट्य शास्त्र का एक श्लोक का एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ। गीतम वाद्यम च नृत्यम च संगीतम उच्यते, यानी गीत, वाद्य यंत्र और नृत्य जो है उसको हम संगीत कहते हैं। और संगीत हमारा एक माध्यम था अपने विचारों को प्रकट करने का। तो जब आप मंदिर की दीवारों पर ओडिसी नृत्य की एक चित्रण देखते हैं, एक मूर्तियों के रूप में, और आप सामने देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट का ऑडिटोरियम जैसे बनाया हुआ, और आप देखते हैं कि ये जगह असलियत में सूर्य का मंदिर थी। तो जहाँ पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इक्विनॉक्स और साल दर साल क्या होगा, अगला साल कब होगा, किस तारीख को क्या तिथि होगी, ये सब का ज्ञान भी यहाँ मिलता था। तो ये ज्ञान का क्षेत्र था और इतनी सुंदर कलाकृति पत्थरों पर उकेरने का जो काम किया, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की इतना वजन ढोने के लिए किस प्रकार का वजन चाहिए, कैसे उसकी ताकत बढ़ानी होगी, किस तरीके के पत्थरों का निर्माण शैली क्या रही होगी, वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि हमारे पूर्वज विज्ञान को नहीं जानते थे। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे लिए ज्ञान में अंतर नहीं था कि ये आर्ट और क्राफ्ट है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी है। विदेशी भी इंस्पायर होंगे इससे बहुत ज़्यादा। वो सब तो कई चीज़ों में उनकी समझ, हमको अपने आप को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी समझ कई क्षेत्रों में हमारे से अधिक परिपक्व है। और समय है कि भारत अपनी समझ से अपने आप को परिपक्व करे और देश दुनिया आपका इंतजार कर रही है। पुरीରୁ रमेश साहू रिपोर्ट, संघर्ष टीवी।